Good morning, everyone. So, yesterday we were discussing about the condition for reciprocity when we have a two-port network and characterizing it through hybrid parameters like H and G parameters. We have already discussed about reciprocity, and the condition for reciprocity, as you would have noticed, was that H12 is equals to minus H21, and for G parameters, it was G12 is equals to minus G21. Today, what we will do is we will try to find out the condition for symmetricity for a two-port network when it is characterized by hybrid parameters. Okay, so I want to find out the condition for I want to do condition for symmetricity. Condition for symmetricity of two-port network. So condition for symmetricity पहले h parameters के लिए करके देखते हैं, ठीक है? तो as you are all aware that h parameters characterization में जो दो linear equations होती हैं वो v1 और i2 के फॉर्म में होती हैं, and then you have h11 i1 v1 और i2 के फॉर्म में होती है. You have h11 i1 plus h12 v2. Similarly, over here you have h21 i1 plus h22 v2. बट कल की क्लास में जाने से पहले in the last I told you that symmetricity means, by definition, symmetricity means that the impedance or the driving point impedance in the input side, which was Z11, and the driving point impedance on the output side, which is Z22, ratio of voltage and current at port 1 and ratio of voltage and current at port 2 is same. Okay, so this is by definition, not just mathematically, in circuit in circuit parameters this should be true. Okay, लेकिन इनकी definition क्या थी? What was the definition for Z11? Anyone remember? So I hope आपको याद होगा that Z11 was nothing but V1 upon I1, provided because it was an open circuit parameter, I2 is equals to 0. Also, Z22 was equals to V2 upon I2, provided I1 equals to 0. ये चीजें थी. You have to follow this particular definition for symmetricity. तो ये कैसे पॉसिबल है? इस इक्वेशन में आप इन दोनों इक्वेशन में पहले तो I2 को 0 रख दीजिए, I2 को 0 रख दीजिए, and then you try to find out the ratio of V1 and I1. कैसे, ये कैसे पॉसिबल है? तो यहां से देखिए, ये इक्वेशन देखिए सबसे पहले. व्हाट यू हैव 0 is equals to H21 I1 plus H22 V2. Fine. This is the equation you have. और इस वाली इक्वेशन से, फ्रॉम दिस इक्वेशन यू फाइंड आउट कि V2 को हम कैसे लिख सकते हैं. तो या इस इक्वेशन से, ये जो पहली वाली इक्वेशन है, आप V2 को यहां से कैसे लिख सकते हैं? देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? V1 माइनस H11 I1 upon H12 is equals to V2. Can we write it like this? Yes, we can. It is just mathematics, no logic. Fine. अब ये जो V2 यहां से आपने निकाला, प्रोवाइडेड I2 मैंने 0 कर दिया है, ठीक. अब जो V2 यहां से निकाला, यहां से इसको इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए. So इन दोनों को कंबाइन करके आपके पास एक और इक्वेशन आएगी. वो कुछ कैसी दिखेगी? 0 is equals to H21 I1 plus H22 upon H12. H22 इसका, H12 इसका, ब्रैकेट में
V1 minus H11 I1. ठीक है, दिस शुड बी इन दिस वे ट्रू. अब थोड़ा सा इस चीज को व्हाट यू हैव टू डू इज थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए कि I1 के कोएफिशिएंट साथ में आ जाए और V1 के साथ में, ताकि आप उसे V1 अपॉन I1 का रेशियो दे सके. दैट इज टू दैट. सो आप देखें इसी इक्वेशन को अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं, सो आई वुड हैव समथिंग लाइक H21 I1 माइनस ऑफ H11 H22 अपॉन H12 I1 और प्लस H22 V1 अपॉन H12. ये बात समझ आ रही है ना? दिस जस्ट मैथमेटिक्स वी आर फॉलोइंग. अब यहां से I1 से आप जो है आप चाहें तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक I1 टर्म्स ऑन दिस साइड एंड लेट V1 terms to be on this side only. So when you will do that, what you will have is this. तो क्या मैं यहां से लिखना शुरू कर सकता हूं? ओके, तो मैं यहां से इसको अब यहां लिख रहा हूं, ठीक है. So what while I have is this H11 H22 अपॉन H12. यहां से ये साइड गया तो प्लस का हो गया, और फिर माइनस में H21 ब्रैकेट कॉमन I1 इज इक्वल्स टू ये वाली चीज दोबारा लिख दीजिए व्हाट इट इज H22 अपॉन H12 H22 अपॉन H12 V1. Okay, I think nobody is waiting. Fine. Now what you have to do is you just have to take the ratio. लेकिन रेशियो लेने से पहले इसका एक एलसीएम ले लीजिए आप. इसका एलसीएम कैसे आ जाएगा? तो फाइनल जो इक्वेशन जैसी हमको दिखेगी इट वुड बी समथिंग लाइक दिस H11 H22 माइनस H21 H12. देखिए इसका एलसीएम ले लिया और फिर ये H12 कैंसिल कर दिए इनटू I1 शुड बी इक्वल्स टू H22 V1. ठीक है, कैसे? ये हमने एलसीएम लिया तो इसमें H12 का मल्टीप्लाई हो गया और ये पूरे ब्रैकेट डाउन ऐसे डिनोमिनेटर आ गया और ये टोटल डिनोमिनेटर में आया, फिर H12 कैंसिल हो गया. तो यू हैव दिस इक्वेशन. अब इस इक्वेशन से अगर आप V1 अपॉन I1 का रेशियो निकालें, सो व्हाट यू विल गेट इज दिस. यहां से योर V1 बाय I1 इज इक्वल्स टू व्हाट इट वुड बी H11 H22 माइनस H21 H12 अपॉन H22. देखिए ये अपॉन में H22 आ गया इज इक्वल्स टू V1 अपॉन I1. यानी ये आपका Z11 आया H पैरामीटर्स के लिए. तो यू कैन इंटर कन्वर्ट दीज पैरामीटर्स. तो अगर H पैरामीटर्स दिए हैं, मुझे निकालना है Z11, तो ऐसे निकलेगा. ठीक है, एक चीज ये अभी Z11 आया है. सिमेट्रिसिटी के लिए मुझे Z22 निकालना है और उसे Z11 के बराबर रखना है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. अब Z22 के लिए हम इसी प्रोसेस को दोबारा रिपीट करेंगे. सो वी हैव V1 is equals to H11 I1 plus H12 V2. I2 is equals to H21 I1 plus H22 V2. एंड Z22 निकालना है तो इसके लिए यू हैव टू यूज V2 अपॉन I2 at I1 equals to 0. V2 upon I2 at I1 equals to 0. Now you put I1 equals to 0 in this equations. Okay. So what you will be left with is this. V1 is equals to H12 V2 at I1 equals to 0 बोल रहे हैं हम. ठीक है. And I2 is equals to H22 V2. V1 is equals to H12 V2 and I2 is equals to H22 V2 provided ये और ये दोनों जो है वो 0 हो गए हैं. This and this has become 0. Right? अब यहां से what you have to do is you simply got from this equation that V2 upon I2 is nothing but equals to 1 upon H22.
ठीक है, दिस इज द इक्वेशन फॉर Z22. नाउ डूइंग Z11 equals to Z22, which is required for system or network to be symmetric. तो जो इक्वेशन अभी निकाली थी, व्हाट वाज दैट? इट वाज H11 H22 minus H12 H21 divided by H22 should be equals to 1 upon H22. ये H22 से H22 खुदकुशी कर लेगा और बचेगा क्या हमारे पास? H11 H22 minus H12 H21 should be equals to 1. This is the condition for symmetricity in H and G parameters. So similarly G parameters के लिए भी आप कर सकते हैं. It would be G11 G22 minus G12 G21 should be equals to 1. ठीक है, ठीक है. So let us make a quick revision of symmetric and reciprocal networks या reciprocity theorem जिनमें hold करती है for Z, X, नहीं Y, there is nothing like X network. ये कैसा Y बना है? चलिए ये वाला बना लीजिए. Z, Y, H and G पैरामीटर्स. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी एंड यहाँ मैं लिखूंगा कंडीशन फॉर सिमेट्रिसिटी. तो कौन बताएगा? Z के लिए कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी क्या थी? व्हाट वाज द कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी इन Z पैरामीटर्स? इट वाज, हाँ कम ऑन जल्दी बताओ. हाउ ऑकवर्ड इट फील्स. हाँ, imagine Z12 is equal to Z21. oh, so for reciprocity it equals to Z12 is equals to Z21. Fine, in Z parameters. And what about Y parameters? Oh, people are replying. So Y. Y parameter के लिए भी Y12 is equals to Y21. Fine. कल H पैरामीटर्स के लिए रेसिप्रोसिटी पड़ी थी, कुछ याद है क्या किया था? कुछ चेंज हो गया था. फॉर H पैरामीटर्स इट वाज H12 is equals to minus H21, है ना? And for G also you can try that at home because एग्जाम में तो मैं G की ही पूछूंगा. ठीक है, G12 is equals to minus G21. It's like this. What about condition for symmetricity? So condition for symmetricity is just this, that the diagonal elements are same. Z22 equals to Z11, Y22 is equals to Y11. और यहाँ आप इक्वेशन 1 लिख लें ये वाली, और यहाँ इक्वेशन 2 लिख लें ये वाली. ठीक है, और ये जो है पैरामीटर्स आपके 2 पोर्ट का, मैं कहूंगा दैट 3/4 ऑफ द पोर्शन इज नाउ कंप्लीट. अब बचे हैं जिसे हम बोलते हैं कैस्केड या चेन या ABCD. एनीबडी कैन डांस नहीं, ABCD पैरामीटर्स, जिसे हम चेन पैरामीटर्स या कैस्केड पैरामीटर्स या कनेक्शन पैरामीटर्स भी बोलते हैं. ये क्या है आइए जानते हैं. अभी तक Y, Z, H और G पैरामीटर्स में किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? बता दीजिए. नो, ओके, देन इट्स फाइन. Now we will move ahead with cascade or transmission parameter or transfer parameters. So you can write like it is now called as transmission parameter. हो गया स्पेलिंग गलत. Transmission parameter. Okay, you have transmission parameter.
we also call these parameters as cascade parameter, and we also call these as chain parameter. पैरामीटर्स, अरे ये क्या बात है, बताते हैं. ट्रांसमिशन, ABCD? कैस्केड, चेन, हाँ ABCD भी कहते हैं. So these parameters will make you dance actually if the question comes in exam. So this parameter can make anybody dance. That's why ABCD. No, it's funny, but it's not that funny. When question will come in exam on ABCD parameters, it would waste your time. Chaliye, koi nahi. But we will try to build an understanding of what ABCD parameters are. So you have a network N. ठीक है, you have a pair of terminal here. You call this as V1, you call this as V2, you call this as I1 and you call this as I2. अभी तक हमने यही तो पढ़ा था, यही पढ़ा था ना, या ये अलग है, डिफरेंट है? सोचो, अगर हमने लास्ट 4 क्लासेस को आप रिकॉल करें तो मैंने ये डायग्राम बनाया है सबसे फर्स्ट टाइम, उसमें और जो डायग्राम बनाया है आज, इसमें क्या अंतर है? अंतर है भी या सेम है? सर I2 और I1 की डायरेक्शंस चेंज है. यस, एंड दैट मेक्स एनीबॉडी डांस. क्यों? बिकॉज नाउ earlier we were having the parameters in which the direction of I1 and I2 were like they are entering the network. Here I1 current is entering the network and I2 current is leaving the network. और केवल इतना करने से things will change drastically. It will change drastically. तो इसमें ये जो फर्स्ट एंड है या जो पहला पोर्ट है, इसे हम बोलते हैं सेंडिंग एंड या जनरेटर एंड, और एंड की जगह पोर्ट भी बोल सकते हैं, सेंडिंग पोर्ट या जनरेटर पोर्ट. ठीक है, और ये जो है दिस पॉइंट जहां पे करंट वापस बाहर आ रहा है, यू कॉल दिस एज लोड एंड और रिसीवर एंड या रिसीविंग एंड. एंड की जगह पोर्ट भी. So when you use generator, you should go with the terminology of load या load port या load end. When you use sending port, you should use the terminology receiving end or receiving port. Fine, you should use it in this way only. So sending end is for receiving end and generator end means load end. तो इसीलिए क्योंकि यहाँ एक पोर्ट ऐसा है जहां पावर आ रही है, फिर उसके साथ कुछ किया जा रहा है, whatever it would happen in this network, और फिर पावर जा रही है. ठीक है, इसीलिए इस तरीके के पैरामीटर को कैस्केड पैरामीटर बोलते हैं. क्यों? क्योंकि आप यहां से इसे किसी और नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं. So this would go in it and then you will have again something coming out. तो जैसे मान लीजिए you have how can I say that, you call this one as cascade. For example, let's say you have one network which is connected to this. So you have like this network N which is connected to this network, and then this one is connected to this network, and then this one is connected to this network. So a chain like thing would happen or form. So you call these
चेन पैरामीटर या कैस्केड पैरामीटर ऑल्सो। कैस्केड मतलब एक के पीछे एक लगा देना। ट्रांसमिशन भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि यहां से थ्रू सेंडिंग एंड और द जनरेटर एंड the network is modified or the network modifies the current or the voltage and send it to the load end। तो ये नेटवर्क जो है मॉडिफायर की तरह से काम करेगा। ये एक ट्रांजिस्टर हो सकता है जो एम्पलीफायर होता है, ये एक ट्रांसफार्मर हो सकता है जो स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकता है वोल्टेज को। यहाँ पर एक व्हाट यू कैन से, इट कैन बी एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क which does something to voltage and current। अच्छा, क्योंकि हमारा सिलेबस लीनियर से डील करता है तो हम लीनियर ही बोलेंगे इसे। अब इनकी डेफिनेशन कैसे होगी, इनका तरीका क्या होगा बताने का कैस्केड पैरामीटर में, तो ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं। अभी तक हम जो दो इक्वेशंस लिखते थे वो इस फॉर्म की होती थी। दो इक्वेशंस है, पहली इक्वेशन में एक लेफ्ट हैंड साइड होती थी और फिर एक राइट हैंड साइड होती थी। तो यू वुड हैव सीन कि हमेशा कुछ इस तरीके से होता था कि फर्स्ट इक्वेशन या तो V1 के लिए होती थी या I1 के लिए होती थी। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन या तो V2 के लिए होती थी या I2 के लिए होती थी। यहां याद है ना, H पैरामीटर, G पैरामीटर, Y पैरामीटर, Z पैरामीटर में ऐसे ही होता था। फर्स्ट इक्वेशन वाज फॉर पोर्ट 1, वो वोल्टेज या करंट कुछ भी हो सकता है। सेकंड इक्वेशन वाज फॉर पोर्ट 2, ये भी वोल्टेज या करंट कुछ भी हो सकता है। बट फॉर चेन पैरामीटर्स ये नहीं है, ठीक है। चेन पैरामीटर्स के लिए क्या है, इट इज समथिंग लाइक दिस, यू हैव V1 हियर एंड I1 हियर। दोनों इक्वेशंस पोर्ट 1 के लिए है। ओ यस, एंड देन यू हैव समथिंग लाइक दिस, A टाइम्स V1 plus V times I2, C times V1 plus D times I2। यहां पे ये जो है वो सेंडिंग एंड है, रिसीविंग ये सेंड वाला है, एंड दिस इट शुड बी V2, सॉरी, क्योंकि हम V1 तो लिख ही नहीं सकते। तो ये जो है वो सेंडिंग एंड वाला है। तो इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो V1 I1 is equals to, anybody can dance, and V2 I2। So this is your sending end, this is your receiving or load end, and these are the cascade parameters। Fine। हाँ जी, तो दो तरीके के कैस्केड पैरामीटर होते हैं। एक तो आपने ये लिखा, ये कैस्केड पैरामीटर है। एक और भी होता है जिसमें ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव V2 and I2, and you write it in this form: small a V1 plus small b I1, small a V small c, it should be C, V1 plus small d I1। ओके, यहां पे V2 जो है वो डिपेंडेंट है, यहां V1 वाज डिपेंडेंट, ठीक है। ओके, अब इसको कैसे लिखेंगे, दिस यू कैन राइट लाइक V2 I2 in the matrix simply ABCD, छोटा वाला small, and you have here V1 and I1। Now because you have written it in inverse way, these are called as inverse transmission, inverse transmission or inverse chain parameter। Right, you call it as inverse transmission or inverse chain parameter, like this। Now we'll pick up the forward chain or forward transmission parameter, and we will define what is A, B, C and D। And by defining we mean we just have to see
कि क्या किया जाए वोल्टेज और करंट के साथ कि हम वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ सी, वैल्यू ऑफ डी निकाल पाए। ठीक है, ये करना है। So let us do that. Let us see. So we have V1 I1 is equals to A V2 is equals to C V2 plus B I2 plus D I2. Now we have to define. So definition के लिए क्या करना होता है? So it is simply this: V1 upon V2 at I2 is equals to 0 will make A. V1 upon V2 at I2 equals to 0 is A. Similarly, what will be B? So B will be V1 upon I2 at V2 equals to 0 is B. What would be C? I1 upon V2 at I2 equals to 0. I1 upon V2 at I2 equals to 0, it is C. And what about D? I1 upon I2 at V2 equals to 0 is D. Fine. It's this. Now, because this voltage V1 is nowhere depend on current I1, होगा लेकिन अभी दिख नहीं रहा है यहाँ जिस तरीके से डिफाइन किया है. This is one reason that there is no equivalent circuit for ABCD parameter. तो ABCD parameter का आप लिख लीजिए that you don't have any equivalent circuit. No equivalent circuit for ABCD parameter. Off लगा दीजिए. No equivalent circuit of ABCD. ठीक है? Because you know that this equation is, although we can say it is something like a current gain, but this is not the current which is flowing in port 1, so you cannot write the equivalent circuit. पहले तो ये होता था कि हमारे पास या तो करंट सेम मिल जाता था या वोल्टेज सेम मिल जाता था, तो हम उसे या तो एडमिटेंस या फिर इम्पीडेंस बना देते थे. अब हम कुछ नहीं बना सकते. These are all transfer. That's why the term transmission parameter. These are all transfer, right? It would be transfer impedance, it would be gain, it would be transfer impedance, it would be gain. It is just transfer. तो इसका कोई इक्विवेलेंट सर्किट नहीं बन सकता है. हाँ, कोई बनाने से रोकेगा नहीं आपको. जैसे आप सिंपली बोल सकते हैं कि सर देखिए ये वोल्टेज है. आपने कहा हाँ सही, ये बात है, ये वोल्टेज है. मैं AV2 आप जो बोल रहे हैं उसे बोलूंगा VA, और जो BI2 आप बोल रहे हैं उसे बोलूंगा मैं VB. और फिर सर आपने बताया था कि दो वोल्टेज को हम ऐसे पैरेलल सीरीज में ऐड कर सकते हैं. तो देखिए ये V1 ये बन जाएगा, इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं AV2 और इसकी वैल्यू लिख देते हैं BI2. बट नाउ यू कैन नॉट स्पेसिफाई. ठीक है, तो ये जो AV2 है इट विड बी अ वोल्टेज सोर्स, और ये जो BI2 है इट वुड आल्सो बी अ वोल्टेज सोर्स, एंड यू कैन नॉट स्पेसिफाई कि रेजिस्टेंस की रीडिंग होगी या कुछ होगा. तो ऐसे तो बना सकते हो, लेकिन कंट्रोल्ड सोर्सेस वाला ही नेटवर्क बन के रह जाएगा. ये कोई इंपीडेंस मिलेगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं. तो दिखेगा नहीं तो कैसे बनाएगा? इसीलिए देयर इज नो इक्विवेलेंट सर्किट फॉर ABCD पैरामीटर. सिमिलरली आप यहाँ से देखेंगे तो दो सोर्सेस पैरेलल में ऐड होती दिखेंगी करंट की, और कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख पाएगा. फाइन, ठीक है. तो ये तो हुई कैपिटल ABCD पैरामीटर की डेफिनेशन. अच्छा, अब स्मॉल ABCD पैरामीटर की डेफिनेशन क्या होंगी इसी लिहाज से अगर देखा जाए तो स्मॉल ABCD पैरामीटर में जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है वो क्या होता है? V1, और क्या लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे? यू राइट V2 I2. इट इज स्मॉल a V1 प्लस स्मॉल b I1, स्मॉल c V1 प्लस स्मॉल d I1. ठीक है. अरे अब दोबारा से इनकी डेफिनेशन लिखनी है तो बताते जाइए. What would be A? A will be equals to V2 upon V1 at something. It is I1 equals to 0. What about C? C is equals to I2 upon V1 at I1 equals to 0. What about B? B is equals to V2 upon I1 at V1 equals to 0.
And what about D? D is I2 upon I1 at V1 equals to 0. और इसका भी कोई इक्विवेलेंट नहीं है, वही तर्क है, केवल केवल कंट्रोल सोर्सेस बचेंगे और कुछ बचेगा ही नहीं, तो हम क्या बनाएं फिर? कंट्रोल सोर्सेस तो बन जाएंगे, बट यू कैन नॉट मेक इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दीस पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंसेस. ठीक है, खैर ये डेफिनेशन या टू पोर्ट नेटवर्क समाप्त हो गया. अब जो है, आज मैं एक नया एग्जांपल आप लोगों को बताता हूँ फॉर ABCD पैरामीटर्स. तो व्हाट यू हैव टू डू इज you have to calculate the ABCD parameters of this circuit, capital ABCD parameters. Determine capital ABCD parameters of this circuit. Which circuit? ये बिल्कुल नया एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं. ये हुआ प्लस माइनस V1, ये हुआ प्लस माइनस V2, ये था 1 ओम, ये यहाँ पे 2 ओम कर लीजिए, ये 3 ओम कर लीजिए, ये प्लस माइनस V2 कर लीजिए, V2 कर लीजिए. ठीक है, एंड दिस इज I2. ये बिल्कुल नया एग्जाम्पल है. क्यों नया है, पुराना है? सेम है. अरे नहीं है, ये तो देखो. हाँ सर, करंट की डायरेक्शन. Okay, so what he'll do is because last year also when I was teaching, they used to say, sir आप एक ही example पे चिपक जाते हैं. So yes, because I want to increase the probability of you getting confused in exam in applying the concepts. ठीक है? So what you have to do is, I have shared a book with you. You have to go through that. कुछ एग्जाम्पल्स वहां दिए हैं. कोई भी सर्किट उठा लीजिए, एनी टाइप ऑफ अ सर्किट जिसमें एक वोल्टेज यहां हो, दूसरा यहां हो. ऐसे ओपन भी नहीं, मान लीजिए यहाँ रेजिस्टेंस भी है, वो भी चलेगा. एंड यू जस्ट इंक्रीज 2 वायर्स आउट ऑफ इट एंड ट्रीट दैट एज ओपन पैरामीटर या 2 पोर्ट पैरामीटर. आपको ध्यान होगा, ये सर्किट मेरा अभी थोड़े दिन पहले ही फेवरेट बना है. उससे पहले एक और फेवरेट सर्किट हुआ करता था, जिसकी मैंने आपसे कहा था कि पूजा भी करने लगना. याद है ये वाला सर्किट? You remember this? सर ऐसे कैसे बोल सकते? You remember that? याद है, भूल गए? याद है सर. याद है तो याद है. बस अब आपको क्या करना है, अगर इसका मैं आपसे, इस पे मैंने आपसे काम करवाया था मैश एनालिसिस, नोड एनालिसिस का, है ना? तो मैं बस इतना करूंगा एग्जाम में, ये 2 बढ़ा के दे दूंगा और इसको कहूंगा दैट दिस इज गोइंग टू बी योर करंट सोर्स. दिस इज गोइंग टू बी अ करंट सोर्स जिसकी वैल्यू V1 के बराबर होगी. अ करंट सोर्स जिसकी वैल्यू V1 के बराबर होगी. दैट्स इट. और कहूंगा कि अब पैरामीटर्स निकाल के बताओ 2 पोर्ट के. सही है, करते रहना सॉल्व. बट दिस इज वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल. यू हैव टू सॉल्व दिस. दिस इज गुड एग्जांपल. एटलीस्ट यू कैन ट्राई दैट एट होम. ठीक है, एज अ होमवर्क. वी विल डू in class this easy example only. Okay, and if you want, in coming few classes we would do some more examples which would be easier than this, but not the one I disclose right now. चलिए, तो हमें कैपिटल ABCD पैरामीटर निकालने हैं. तो अगर मान लीजिए कैपिटल A निकालना है बाई चांस, तो कैपिटल A की रिक्वायरमेंट क्या है? कैपिटल A रिक्वायर्स व्हाट? कैपिटल A रिक्वायर्स I2 to be 0. ठीक है, सो एट I2 equals to 0, at I2 equals to 0, what would be the equivalent circuit? It would be something like this. Plus minus V2, this is 3 ohms, this is 2 ohms, and this is 1 ohms. Now I am going to solve it in a bit different way. Okay, I will not apply any type of a test source here. So this is although plus minus V1, but I will not apply any test source here anymore. Okay, this is the current flowing inside, which is I1. Okay, now what is the voltage across this? The voltage across this is still V2.
if the voltage across this is V2, what will be the current across this 3 ohm resistance? It would be V2 by 3 in amperes. Fine. तो V2 by 3 करंट इस पूरी ब्रांच में फ्लो होगा, यानी इसमें भी. पहली चीज, इसके अक्रॉस वोल्टेज V2 था, V2 by 3 is current. That same current should flow in this branch. Similarly, इस पॉइंट के यानी इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस में देखूं that the voltage is V2 plus V2 2V2. So the current in this branch will be V2 या फिर more specifically 2V2 by 2. So it becomes V2. तो एक इक्वेशन तो I1 के लिए आई इस नोड पर, that I1 should be equals to V2 plus V2 by 3. ठीक है, एक इक्वेशन तो ये आई, that your I1 should be equals to V2 plus V2 by 3, which is from KCL equation at this node. वहीं अगर आप यहां V1 को देखें और इस मैश में चले तो आपको पता चलेगा that V1 is actually is equals to, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है? I1 into 1. So 1 I1. This is the voltage across this resistance. Plus what is the voltage across this resistance? इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? कितना है? कितना है? 2V2. Okay. So you have these two equations now. You have these two equations. One is this equation and the other is this. Now ABCD parameter में A की definition क्या होती है? What was A? It was V1 upon V2. V2, correct. तो बस आप I1 की जगह यहां पर इस इक्वेशन में ये इक्वेशन रख दीजिए. So in this equation, which is V1 is equals to something something something, you just use the value of I1 right here. So you would have V1 is equals to, I1 की जगह लिखा V2 plus V2 by 3 plus 2V2. Okay, then you will get it is something like 3 to the 6 and 3 is 9 plus 1 10 V2 by 3. LCM ले लिया है, 3 plus 1 4 plus 3 into 2 6, 6 plus 4 is 10 V2 by 3. And if you want V1 by V2, it is simply 10 by 3. That's it. Similarly, what about C? C कैसे निकालेंगे? C की definition क्या है? I1 upon V2. I1 upon V2. तो यहां से आप I1 upon V2 निकालेंगे. So it is simply what? I1 is equals to 4 V2 by 3. तो I1 upon V2 is 4 by 3.